Hello students. So previously we have done pre-fertilization structures and events in chapter 2 sexual reproduction in flowering plants. So in part 1 we have discussed about formation of stamens, their structure, and then formation of microsporangium and pollen grains. So today we are going to do female gametophyte, that is pistil megasporogenesis. So first of all, what is a female part of a flower is known as? So it is called gynoecium. It is also known as pistil or carpel. So pistil is normally consist of stigma, style and ovary. So as you guys have seen the structure of flower, so it has three parts: stigma, which receives the pollen grains, a stalk-like structure, that is style, and most important part is ovary. Ovary is further divided into separate structures, like it contains ovules which are attached to ovary wall with the help of placenta. So this is the structure of a simple pistil. So now there are plants with single ovules like wheat and paddy, and with many ovules like papaya, watermelons, or other cucurbitaceae members. So let's take a look at single ovule. So this is a flower of wheat in which we have ovary, and in ovary we will have single ovule, means a single seed is formed in this ovary. Then there are examples of many ovules like cucurbitaceae, cucurbits. So in these we have many ovules which will then form many seeds. So there are different terms for these gynoeciums with single carpel or pistil, and with more than one pistil. If they are pistils, they are, if they are many, so if they are fused, then there is different term. If they are free, then there is different term. So gynoecium with one pistil or one carpel is known as monocarpal tree. Mono means one, carpal means pistil. So in case of पीस लाइक लेग्यूम्स, अगर हम देखें मटर के सीड्स आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें क्या है कि सिंगल ही कार्पल होती है, एक ही सिंगल. उसमें क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ओव्यूल्स होंगे, मीन्स कई सारे ओव्यूल्स होंगे, बट जो कार्पल होगी दैट विल बी single. So this is a monocarpal. Then we have gynoecium with more than one pistil. So example is the ranunculus. So here we can take a look like this. These are many carpels. This is different, this is different, this is different, this is different. So this is also an example of apocarpus, free pistils. Means all the pistils, carpels जो हैं ये सारी क्या हैं, फ्री हैं, एक दूसरे से फ्यूज नहीं है. मीन्स ये क्या है, अलग सीड्स बनाएंगे, ये वाली अलग सीड्स बनाएंगे और ये वाली अलग सीड्स बनाएंगी. तो दीज आर नोन एज एपोकार्पस. देन वी हैव fused pistils or fused carpels. They are known as syncarpus. Examples are Solanaceae family. Solanaceae family में अगर हम देखें कैप्सिकम, फॉर एग्जांपल कैप्सिकम, तो यहाँ पे क्या है, कार्पल्स जो क्या है वो है फ्यूज्ड हैं. देखिए दिस इज वन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. तो देयर आर थ्री कार्पल्स which are fused in a one. So this is example of syncarpus like in Solanaceae. Then this is example of apocarpus, that is free pistils, again ranunculus. So now coming to main structure, that is megasporangium. Megasporangium, or also known as ovule. So ovule is a small structure that is attached to placenta. So this will form seed. So let's take a look at structure of ovule. So ovule is attached to placenta with a small stalk called funicle. So this is the small stalk-like structure through which ovule is attached to placenta. Then there is a hilum, that is junction between ovule and funicle. So this is the junction between funicle and ovule. Then there are integuments. There are different layers of integuments like outer integument and inner integuments, which protects the ovule or nucellus from, or the embryos or embryo sac from desiccation or other harms. So then there are two ends, micropylar end and chalazal end. So micropylar end is small opening at the tip of the ovule. यहाँ पे जहाँ पे टिप है, that is known as, जहाँ पे entry point होगा pollen grains का. So this is known as micropyle. Then we have chalazal end, that is basal part of ovule. This is also known as chalazal pole. Then we have nucellus, that is mass of cells enclosed in integuments and has abundant food reserve. So this is a nucellus. This is nucellus, and center we will have embryo sac. Then coming to process of megasporogenesis.
So megasporogenesis is the process of formation of megaspores from megaspore mother cell. So this is megaspore mother cell. So it will undergo meiosis. After meiosis, it will form 4 haploid daughter nuclei. So these are known as megaspores. अब out of these 4 megaspores सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगा, बाकी जो 3 है वो क्या है, डीजनरेट हो जाएंगे. So out of these 4 megaspores, 3 will degenerate and 1 will become functional megaspore. Now coming to female gametophyte, that is embryo sac. So the embryo sac develops from the functional megaspore. अब जो megaspore पिछली बार बना है, जो मेगास्पोर मदर सेल था उससे 4 बने थे हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई, उनमें से क्या था, 3 जो थे वो डीजनरेट हो गए थे और एक मैच्योर हो गया था फंक्शनल. अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या है, इट विल फॉर्म एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट. सो इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर. देन अब फॉर्मेशन कैसे होगी एम्ब्रियो सैक की. So nucleus of functional megaspore, it divides mitotically to form 2 nuclei which move to opposite poles forming 2 nucleate embryo sac. अब जो मेगास्पोर बना है उसका जो न्यूक्ली है वो क्या है, माइटोटिकली डिवाइड करेगा. मीन्स ऑलरेडी क्या है, हैप्लॉइड है ये. पहले जो मेगास्पोर मदर सेल था वो डिप्लॉइड था, उससे क्या थे, थ्रू मेयोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स बने. अब जो 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं उनमें से क्या है, 3 डीजनरेट हो गए और एक फंक्शनल मेगास्पोर बन गया. अब ये हैप्लॉइड है और इट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन्स. माइटोटिक डिवीजन्स के बाद क्या है, इट विल फॉर्म 2 सेल्स. अब जो 2 न्यूक्लियर बने हैं वो क्या हैं, एक ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, मीन्स बनाएंगे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेल. अब इसके बाद फिर क्या है, 2 मोर माइटोटिक डिवीजन होंगे. मीन्स 2 मोर मीन्स पहले क्या है, एक माइटोटिक डिवीजन हुई, 4 न्यूक्लियर बनेंगे. इसके बाद फिर एक होगी न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, जिससे क्या है 4 से 8 हो जाएंगे. सो लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सेल विल फॉर्म. इसके बाद क्या है, then cell wall is laid down leading to organization of female embryo sac. तो उसके बाद क्या है, जो ये 8 सेल्स बनेंगे उनमें से क्या है, 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाएंगे, 3 दूसरी तरफ चले जाएंगे चलाजल एंड की तरफ, और 2 जो हैं वो सेंटर में आ जाएंगे. सो नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, के स्ट्रक्चर कैसा है एम्ब्रियो सैक का. तो जैसे कि जो 8 न्यूक्लियर थे वो क्या थे, डिवाइड हो गए थे अलग से, कि जो चलाजल एंड पे थे वहाँ पे 3 चले गए थे, 2 सेंटर में आ गए थे पोलो न्यूक्लियर, और 3 कहाँ चले गए थे, माइक्रोपाइलर एंड पे. सो एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ एग अपरेटस. एग अपरेटस मीन्स टुवार्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, then antipodal towards chalazal and polar nuclei that is in center. So egg apparatus, it is present at micropylar and consists of 2 synergids. These are 2 synergids and 1 egg cell. So this is the main egg cell. So these synergids, they have cellular thickenings at micropylar tip called filiform apparatus. So this will help in guiding the pollen tube into synergids. Then we have antipodal cells, which are the cells present at chalazal end, and there is large central cell. So this is a large central cell which contains 2 nuclei, also known as polar nuclei. Now based on the source of pollens, pollination is of 3 types. तो 3 तरह की pollination है अगर हम on the basis of source पे देखें. So one is autogamy, dichtonogamy and xenogamy. So autogamy means transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower. कि जो सेम ही फ्लावर के क्या है, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर क्या है, पोलन ग्रेन्स चले जाएंगे. तो इसके लिए क्या है, रिक्वायरमेंट क्या होगी अगर उनको सेल्फ पोलिनेशन करनी है. ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पोलिनेशन. सो देयर विल बी सिंक्रोनेशन इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. मीन्स अगर स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी और पोलन्स का जो रिलीज है वो क्या, मैच्योरिटी वो क्या है, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, एक ही टाइम पे होनी चाहिए वो. एंड देन सेकेंड इज क्लोजनेस ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर. जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतने क्या चांसेस ज़्यादा हैं fertilization के. So then they, according to formation or structure of flowers, they are divided into 2 types, chasmogamous and clistogamous flowers. So chasmogamous flowers हैं जिनमें क्या है, जो एंथर्स और स्टिग्मा है वो क्या है, एक्सपोज्ड हैं. जैसे इसमें क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा बोथ क्या है, दे आर एक्सपोज्ड. while in clistogamous flowers, like take a look at this viola flower, तो इसमें क्या है, जो फ्लावर्स हैं वो डू नॉट ओपन एट ऑल. कि अगर फ्लावर्स वैसे तो ओपन ही नहीं होते, अगर ओपन होंगे भी तो क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल और जो एंथर्स हैं वो क्या है, एक्सपोज्ड नहीं होंगे. सो डिसएडवांटेज क्लिस्टोगैमी के क्या है कि वहाँ पे वेरिएशन के चांसेस नहीं रहते. कि अगर चेस्मोगैमस फ्लावर्स हैं तो वहाँ पे क्या है कि बाहर से भी पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे. अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी, कि अलग ट्रेड्स आ जाएंगे किसी और फ्लावर के.
क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या है कि देयर इज नो चांस ऑफ वेरिएशन, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि होगी तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी. देन कमिंग टू गाइटोनोगैमी. सो गाइटोनोगैमी इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. मीन्स पहले तो क्या था, एक ही फ्लावर में अंदर ही अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगी, ठीक है. अनदर इज गाइटोनोगैमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन, मीन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में बट ऑफ सेम प्लांट. सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बट फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, मीन्स एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में. सो दीज जो सीड्स बनेंगे वो क्या होंगे, दे आर जेनेटिकली सिमिलर. सो एग्जाम्पल्स आर कुकुरबिट्स. देन थर्ड टर्म इज xenogamy. सो xenogamy इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. मीन्स इसमें क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है कि एक फ्लावर में एंथर प्रोड्यूस हुआ बट वो क्या है थ्रू बर्ड्स और इंसेक्ट्स वो क्या है क्रॉस पोलिनेट होगा टू अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट. मीन्स दिस इज ए प्लांट, दिस इज बी प्लांट. तो जो xenogamy उसमें जो एंथर्स हैं वो ए प्लांट के होंगे और जो स्टिग्मा होगा दैट विल बी ऑफ बी प्लांट. सो देयर विल बी जेनेटिकली डिफरेंस. सो जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स आर ब्रॉट टू द स्टिग्मा. तो इसमें क्या है कि ए से भी आएंगे, अगर सी कोई प्लांट होगा तो वहाँ से भी आएंगे. तो मीन्स इसमें क्या जो सीड्स होंगे दे आर जेनेटिकली डिफरेंट. देन देयर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. सो दो तरह के एजेंट्स होंगे पॉलिनेशन के. मीन्स एबायोटिक. एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एजेंट्स, उसमें आ जाएगी विंड एंड वाटर. अब जो दूसरे होंगे तो वो होंगे बायोटिक एजेंट्स. बायोटिक एजेंट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें आ जाएंगे इंसेक्ट्स, आ जाएंगे बर्ड्स और एनिमल्स. अब जो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं दे आर नॉट वेरी कलरफुल. मीन्स उनको क्या है, उन्होंने किसी को अट्रैक्ट नहीं करना. अगर विंड से हो रही है तो फ्लावर को क्या ज़्यादा अट्रैक्शन की क्या ज़रूरत है. तो मीन्स जो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे दे आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. जबकि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे और बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे वो क्या होंगे कलरफुल होंगे एंड दे विल प्रोड्यूस नेक्टर टू अट्रैक्ट बर्ड्स और इंसेक्ट्स. सो अडेप्टेशन इन फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन. तो अडेप्टेशंस क्या क्या स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, क्या क्या मीन्स अडेप्टेशंस हैं फ्लावर्स में पॉलिनेशन के लिए. सपोज विंड पॉलिनेशन. विंड पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज एनीमोफिली. तो एनीमोफिली के लिए क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स है बाय विंड पॉलिनेट होंगे तो उनमें क्या है कि पोलन ग्रेन्स वो लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए और विंग्ड होने चाहिए. विंग्ड मीन्स ताकि वो क्या है कि एयर के साथ जा सकें. जो एंथर्स होंगे दे शुड बी वेल एक्सपोज्ड एंथर्स होने चाहिए ताकि पोलन ग्रेन्स क्या जल्दी से हवा में जा सकें. स्टिग्मा क्या होने चाहिए, लार्ज एंड फैदरी, ताकि वो जल्दी से रिसीव कर सकें पोलन ग्रेन्स को. फ्लावर में क्या होगा, मोस्टली होंगे वन ओव्यूल. लाइक ग्रासेस में अगर हम देखें वीट का फ्लावर आपने देखा है पीछे, तो उसमें क्या सिंगल ओव्यूल हैं जो उसकी स्टिग्मा दे आर लार्ज एंड फैदरी एंड दे आर अरेंज्ड एज इन्फ्लोरेसेंस लाइक इन केस ऑफ कॉर्न कॉर्ड. तो अदर एग्जांपल्स आर डेट पाम और कॉटन. और इसमें सबके फ्लावर्स आपने देखे हैं दे आर नॉट कलरफुल और डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. देन अनदर इज वाटर पॉलिनेशन और हाइड्रोफिली. सो इन दिस पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब इसमें जो पॉलिनेशन होगी दैट विल बी थ्रू वाटर बट वो क्या है रेयर है इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू एक्वेटिक प्लांट्स एंड लोअर क्लासेस. लोअर क्लासेस मीन्स ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड एल्गी. अब जो पोलन ग्रेन्स होंगे इसमें वो क्या होंगे, दे आर प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग. अब वो क्या म्यूसिलेजिनस कवरिंग से प्रोटेक्टेड होंगे. एग्जाम्पल्स हैं वेलिस्नेरिया, हाइड्रिल्ला और सी ग्रास, जोस्टेल. तो इसमें क्या होंगे, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा. जो मेल फ्लावर्स होंगे दे विल बी सबमर्ज्ड और जो फीमेल फ्लावर्स होंगे वो दे विल बी फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर. तो मेल फ्लावर क्या है, एंथर्स और स्टेमन्स को रिलीज करेगा, फ्लावर्स रिलीज होंगे. अब जो स्टेमन्स हैं वो विद द फ्लो ऑफ वाटर जाएंगे फीमेल फ्लावर्स तक. वहाँ पे क्या है जो पोलन ग्रेन्स दे विल फर्टिलाइज द ओव्यूल. So the main features of wind and water pollinated flowers are they do not produce pollen. Main features of wind and water pollinated flowers plants means they produce pollen grains in large number. अब उसमें क्या है कि उनको large number में produce करने पड़ते हैं pollen grains and they do not produce nectar. So this is of Vallisneria. These are male flowers or stigma of anthers of Vallisneria. So then coming to biotic agents. Biotic agents आते हैं आपके bees, butterflies, simple flies, beetles, wasps, ant, moths और birds और bats. So these are the common pollinating agents. अब इसमें क्या है कि जो flowers होंगे they will be large, colorful होंगे, fragrant होंगे and rich in nectar. ये सब किस लिए, ताकि insects को attract कर सकें.
अब जो पोलन ग्रेन्स होंगे दे विल बी स्टिकी, ताकि क्या एनिमल्स और इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ स्टिक कर सकें। स्टिग्मा भी क्या होंगे, फर्दर स्टिकी होंगे, ताकि वो क्या पोलन ग्रेन्स को स्टिक कर सकें। सो देयर विल बी रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर्स लाइक नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स एज फूड्स। So let's take a look at bees. So this is a cross pollination of pollen grains. So जो स्टेमन से हैं pollen grains they will be stick to bee. अब यहाँ पे क्या bee आई है उसको स्टेमन्स क्या हैं जो pollen grains हैं they will be stick to the body of bee. Then bee travels to another plant of the same type. तो वहाँ पे क्या है जो pollen grains होंगे they will stick to the pistil of the flower. So in this way they help in cross pollination. There is another example. See, these are all the pollen grains or stamens on the body of a bee. So there are in some species provide safe place for laying eggs. For example, Amorphophallus and Yucca. So this is the flower of a Yucca plant. So there is a special relationship between species of moth and a Yucca plant. So this is known as Yucca moth. This is Yucca plant. तो इसमें क्या है कि मोथ एंड प्लांट जो क्या है एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर यूका मोथ होगी तो वो क्या पोलिनेट करेंगे इसको और अपने एग्स क्या है इसी में छोड़ देंगे। और जो यूका प्लांट है वो क्या है इस मोथ के बिना क्या है अपना लाइफ साइकिल मीन्स जो फर्टिलाइजेशन है पोलिनेशन है वो नहीं कर सकता। सो देयर इज ए स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन मोथ एंड प्लांट यूका वेयर बोथ स्पीशीज कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। सो till now we have studied about formation of pollen grains like macrogametophytes and female that is megagametophyte. तो for a quick recall तो जो मेल पार्ट है दैट इज एंथर एंड फिलामेंट ऑल्सो नोन एज स्टेमन। तो उसमें क्या है एंथर्स में क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी जिसमें क्या है माइक्रोस्पोरोसाइट्स और स्पोरोजिनस सेल से और पोलन मदर सेल से विद मेयोसिस क्या बनेंगे माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर विल फर्दर डिफरेंशिएट इनटू पोलन ग्रेन्स। In case of female gametophyte, female part क्या है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड ओव्यूल विच इज ऑल्सो नोन एज कार्पल। उसमें क्या है मेगास्पोरोसाइट है और मेगास्पोर मदर सेल। इट विल अंडरगो मेयोसिस एंड फॉर्म 4 मेगास्पोर आउट ऑफ विच जो 3 है वो क्या है डीजनरेट हो जाएंगे। एक क्या है सर्वाइविंग और फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। उसके बाद क्या है 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे रिजल्टेंट इन 8 सेल्स 3 2 5 एंड 3 8 सेल्स। इनमें से क्या है these are antipodal cells, these are synergin and this is polar nuclei। अब हम इसके बाद करेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कि जब दोनों क्या है मीट करेंगे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या है दे विल फ्यूज विथ एग सेल दिस एग सेल एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ embryo. So this will be discussed in next lecture. So till then you guys can go through this. So thank you.